Good morning, students. Today we will start our lesson 9, the Comet 1 of It So Happened book. Firstly, I am telling the short summary of this chapter. It was a moonless night in December. A cool breeze from the window disturbed the sleep of Indrani Devi. She was the wife of amateur scientist Dattada. When the story starts, at that time there was moonless night of December month. A cool breeze from the window disturbed the sleep of Indrani Devi. Indrani Devi was the wife of main character of the chapter, that is Dattada. She was sleeping and the window was open, so her sleep was disturbed from the cool breeze that was blowing from the window. At that time when she woke up, what did she see? She saw that her husband was not at the bed at that time. Dattada's ambition of life, Indrani Devi found Dattada looking through his telescope. When she checked where did her husband was gone, at that time she found that he was looking through his telescope. To her, the telescope was like a cunning woman who had ensnared her husband. It was his ambition to have enough money to buy a telescope. He also needed spare time to observe the stars. In this chapter, Dattada's ambition in his life to find out an comet, मतलब उनका जो ambition है वो क्या ढूंढना चाहते हैं कि कॉमेट की खोज करना चाहते हैं. वो एक अमेटर साइंटिस्ट है. अमेटर साइंटिस्ट क्या होता है कि जो अपनी हॉबी के लिए काम करता है, जिसको उसके बदले इनकम नहीं मिलती, जो अपनी हॉबी के लिए काम करते हैं उनको अमेटर बोलते हैं. He also needed spare time to observe the stars, and he observed the stars through his telescope. He also needed at retirement. When he was retired from his job, at that time he had money and time to spend time on stars, and he got money from his retirement, so he bought a telescope to examine the stars. Now Dattada spent long dark nights in observing stars. Means अब जो दत्तादा हैं वो अपना रात का काफ़ी समय कहाँ बिताते हैं? अपनी छत पर. किसको ऑब्जर्व करने में? स्टार्स को. जब उनकी वाइफ जागती है और देखती है कि बेड पर उनके हस्बैंड नहीं है, उस समय भी दत्तादा कहाँ हैं? दत्तादा अपने घर की छत पर हैं, स्टार्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं. दत्तादा हैड अ सीक्रेट एम्बिशन टू डिस्कवर अ न्यू कॉमेट. मतलब उनका जो सीक्रेट एम्बिशन है, वो रिजर्व नेचर के पर्सन है. उनका जो अंदर से जो एम्बिशन है, एम है, वो क्या है कि वो एक न्यू कॉमेट की खोज करें. न्यूज़ अबाउट दत्तादा's discovery was published in Ananda Bazar Patrika. It was reported that Dattada had discovered a new comet. In this chapter, Dattada discovered a new comet, and that news was published in the Anand Bazar Patrika. This is the short summary of this chapter. Now I am explaining the line to line explanation of the chapter. A new comet has appeared in the sky and is heading straight for the earth. A head-on collision, which is nearly unavoidable, will mean the end of life on this planet. Scientists and religious leaders react to this situation in different ways. What happened to the comet? Means in this chapter a new comet was seen in the sky that was heading towards the earth, जो अर्थ की तरफ बढ़ रहा है. क्या होगा उससे? कॉलिजन भी हो सकता है, टकराव भी हो सकता है, और बिना कोई हार्म पहुंचाए ये कॉमेट दूर भी जा सकता है अर्थ से. तो इसके लिए बड़े बड़े लीडर्स, साइंटिस्ट, उन्होंने एक मीटिंग बिठाई. मतलब साइंटिस्ट का जो व्यूज़ है वो अलग है, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो सुपरस्टिशियस पर्सन्स हैं, उनका जो व्यूज़ है वो अलग है. तो दोनों ने क्या डिफरेंट व्यूज़ दिए, और आखिर में जो कॉमेट है उसका साथ क्या घटित हुआ, उसने क्या अर्थ पर कुछ हार्मफुल इवेंट हुआ या नहीं हुआ. वी विल रीड इन दिस चैप्टर अबाउट इट. दत्तादा in this chapter is a main character, that is amateur scientist cannot stay away from keen eyed Dibya Chakshu for long. Means he had a keen desire
टू फाइंड अ न्यू कॉमेट। सो जो टेलीस्कोप है ना, दत्तादा का जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वो किस में है, टेलीस्कोप में है। टेलीस्कोप से वो क्या करते हैं, स्टार्स को एग्जामिन करते हैं, जिसको उसने दिव्या चक्षु कहा गया है। टेलीस्कोप को यहाँ पर क्या गया है, दिव्या चक्षु। दिव्या हेल्प्स हिम अचीव हिज सीक्रेट एम्बिशन। दत्तादास वाइफ इंद्रानी देवी विशेस ही हैडंट फाउंड द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज सर्च। कि जो दत्तादास वाइफ हैं उनको वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि वो जो उनके हस्बैंड हैं टेलीस्कोप के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और स्टार्स को ऑब्जर्व करते हैं। उनकी वाइफ को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो दत्तादा हैं उनकी जो सीक्रेट एम्बिशन है वो इस टेलीस्कोप से पूरी करना चाहते हैं। It was a moonless night in December. A burst of cool breeze from the window was enough to disturb the sleep of Indrani Devi. Half awake, she felt for the adjoining pillow, although she knew the answer Dattada was not there. I have already explained about this paragraph in the summary. At the time when the chapter starts, there was a moonless night, matlab it was a night of December month and there was no moon in the sky. A cool breeze was also blowing that disturbed the sleep of Indrani Devi. When Indrani Devi woke up from her sleep, what did she see? She saw that her husband was not at the bed at that time. When she went to the roof to check, her husband was there without wearing sweater. So she has gone to Hobnob with that wretched Divya. Wretched, Hobnob क्या होता है, have friendly talk. Friendly talk means कि अपना जो टाइम है वो किसके साथ स्पेंड कर रहे हैं, अपने टेलीस्कोप के साथ। Obvious forgetful. At least she might have bothered to close the door. और उनको मतलब इतनी उनके अंदर क्यूरियोसिटी है टेलीस्कोप के साथ टाइम स्पेंड करने की, वो जाते जाते डोर भी बंद करके नहीं गए, विंडो भी बंद करके नहीं गए और स्वेटर भी नहीं पहन कर गए। इवन एज शी मटर्ड हर कंप्लेन, इंद्रा, मटर्ड क्या होता है, स्पोक स्लोली। जैसे हम अपने आप से बात करते हैं, कंप्लेन करते हैं किसी पर्सन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, और धीरे से अपने आप में आपसे बात करते हैं, उसको बोलते हैं मटर्ड। कंप्लेंट्स, इंद्रानी देवी कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल, मतलब कंप्लेन भी कर रही है वो अपने हस्बैंड की और साथ में फेस पर स्माइल भी है। स्माइल क्यों है, अपने हस्बैंड की केयरलेसनेस नेचर के कारण, कि जो हस्बैंड्स होते हैं वो केयरलेसनेस होते हैं, केयरलेसनेस जो कि ध्यान नहीं देते, रेस्पॉन्सिबल नहीं है। शी न्यू हाउ अटरली ऑब्लिवियस हर हस्बैंड वॉज ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ लिविंग, कि जो प्रैक्टिकल मेल पर्सनस की क्या आदत होती है, जो लाइफ के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है ना, मतलब उसके प्रति वो इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, इतने ज़्यादा केयरफुल नहीं होते। डिडंट हिज डॉक्टर टेल हिम टू टेक स्पेशल प्रिकॉशन अगेंस्ट द कोल्ड, बल्कि जो दत्तादा के डॉक्टर हैं, पर्सनल डॉक्टर हैं, उन्होंने उसको सलाह दी है कि इस कोल्ड से वो दूर रहें क्योंकि उनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। बट ही वुडंट रिमेंबर टू पुट ऑन अ स्वेटर इवन इफ इट वॉज लाइंग ऑन हिज बेड साइड चेयर। उनके बेड के साथ वाली चेयर पर उनकी स्वेटर हैंग है, फिर भी वो उसको पहन कर नहीं जाते छत में, क्योंकि दिसंबर में आपको पता है और सर्दी होती है और मिडनाइट के अंदर तो वैसे ही ज़्यादा होती है। हाउ कुड ही वन दिव्या हैड पुट हर स्पेल ऑन हिम, और उसको क्या लगता है कि जो दिव्या है, जो टेलीस्कोप है, उसने उसके वाइफ हस्बैंड पर जादू कर रखा है। कैसे, एक लेडी की तरह से। शी पिक्ड अप द वाइट वुलन्स पुलोवर, wrapped herself in a shawl and made her way to the roof to break up his tit with Divya. One, Indrani Devi took her husband's sweater and wrapped herself in a shawl and made her way to the roof. और कहाँ जाती हैं, हाथ में स्वेटर लेकर अपने आप को शॉल में लपेटकर छत पर जाती हैं, जहाँ पर उसके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, टेलीस्कोप से स्टार्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। शी फाउंड दैम बोथ हडल्ड टुगेदर आई टू आई, मतलब अब टेलीस्कोप से हम किसी चीज़ को देखते हैं तो कैसे देखते हैं, हम अपनी आइज़ को लगाकर स्टार्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एट लास्ट दत्तादा वॉज लुकिंग इन टू दिव्याज आइज। When Dattada acquired this telescope, he was so thrilled that he called it दिव्या चक्षु। थ्रिल्ड क्या होता है, एक्साइटमेंट, बहुत ही ज़्यादा उसको एडवेंचरस लगता है, जैसे कोई काम करने में हमें बहुत ही मज़ा आता है, ऐसे ही जो दत्तादा है उनको क्या काम करने में बहुत मज़ा आता है, टेलीस्कोप से स्टार्स को ऑब्जर्व करना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है।
तो उन्होंने उसका नाम क्या रख रखा है, दिव्या चक्षु, जिसका मतलब होता है डिवाइन आइज। डिवाइन आइज किसकी होती हैं, जो देवताओं की आंखें होती हैं, जो जिनके अंदर चमत्कार होता है, सुपर नेचुरल पावर होती है। टू इंद्राणी देवी द टेलीस्कोप वॉज लाइक अ डिजाइनिंग वुमेन हु हैड एंसनेयर्ड हर हस्बैंड, सो सी जस्ट लाइक कॉल्ड इट दिव्या एंड नेम स्टक। कि जैसे दत्तादा हैं वो अपना ज़्यादा समय कहाँ बिताना चाहते हैं, टेलीस्कोप के साथ स्टार्स को देखने में। तो जो इंद्राणी देवी है वो उस दिव्या चक्षु को किसके साथ कंपेयर करके कहती है कि एंसनेयरिंग वुमेन, कि इसने मेरे हस्बैंड को एक लेडी की तरह जाल में फंसा रखा है। टू दत्तादा द टेलीस्कोप मार्क द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ अ लाइफ टाइम। और जो दत्तादा हैं वो टेलीस्कोप को क्या समझते हैं कि ये मेरी लाइफ की जो एम्बिशन है उसको फुलफिल करने में हेल्पफुल है। उसकी लाइफ की क्या एम्बिशन है, टू फाइंड आ टू सर्च अ न्यू कॉमेट। एज एन अमेटर एस्ट्रोनोमर he had longed for enough money to buy a good telescope and for enough spare time in which he to observe the heavens। मतलब जो दत्तादा हैं उनको लाइफ में टाइम चाहिए था और पैसा चाहिए था टेलीस्कोप खरीदने के लिए। आफ्टर हिज रिटायरमेंट ही गोट मनी एंड ही गोट टाइम आल्सो, सो ही स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इन ऑब्जर्विंग स्टार्स विद द टेलीस्कोप ऑन द रूफ। The telescope was duly installed and long were the dark nights that Dattada spent in stargazing, at least इंद्राणी देवी thought so। जो दत्तादा हैं वो क्या करते हैं, एक अमेटर साइंटिस्ट हैं, जो उनका टेलीस्कोप है वो इतना अच्छा है, ड्यूली इंस्टॉल्ड का मतलब होता है कि इतना बढ़िया वाला है, उसमें इतने सारे फंक्शंस अच्छे हैं कि वो अपना लॉन्ग और इतना बड़ा है। वर द डार्क नाइट्स दैट दत्तादा स्पेंट इन स्टार गेजिंग, उस टेलीस्कोप के साथ वो स्टार्स को ऑब्जर्व करते हैं। एटलीस्ट इंद्राणी देवी थॉट सो, इंद्राणी देवी को भी ऐसा ही लगता है। हेयर पुट ऑन दिस स्वेटर। नाउ when Dattada was observing the star with his telescope on the roof, at that time his wife Indrani Devi went to the roof and gave him a sweater. Do you want Naveen Babu to order bed rest tomorrow? Naveen Babu, who is Naveen Babu here? Naveen Babu is a doctor of दत्तादा। सो उनकी वाइफ क्या कहती है कि या तो ये स्वेटर पहन लो, नहीं तो नवीन बाबू तुम्हें कल बेड रेस्ट के लिए बोल देंगे। कोल्ड से उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। लाइक एवरी अदर अमेटर एस्ट्रोनोमर, दत्तादा हैड अ सीक्रेट एम्बिशन दैट ही वुड वन डे डिस्कवर अ न्यू कॉमेट। दूसरे जो अमेटर एस्ट्रोनोमर होते हैं ना, उनकी तरह जो दत्तादा है उनकी भी क्या विश है कि वो भी एक दिन नए कॉमेट को खोजेंगे। For comets can be new coming as they do from the remote corners of the solar system. Like planets, comets also orbit round the sun, but their orbits are highly eccentric. So once in a while a comet comes close to the sun. It has a longish tail that is lit brilliantly by the sunlight and then it recedes into darkness, not to be seen again for years or for centuries। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, कॉमेट्स के बारे में बताया गया है कि कॉमेट्स जो हैं वो भी सोलर सिस्टम से रिमोट कॉर्नर से ही आते हैं। लाइक प्लैनेट्स, प्लैनेट्स की तरह जो कॉमेट्स हैं, ऑर्बिट क्या होती है, जो हमारी कक्ष होता है, कक्ष उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं राउंड द सन। बट देयर ऑर्बिट्स, बट जो उनके ऑर्बिट्स होते हैं हाईली एसेंट्रिक होते हैं। एसेंट्रिक मतलब अनलाइक द ऑर्बिट्स ऑफ अदर प्लैनेट, प्लैनेट्स के ऑर्बिट से वो अलग होते हैं। वंस इन अ वाइल कमेट कम्स क्लोज, एक बार जो कमेट होता है ना वो सन के क्लोज आता है और बहुत उसकी जो पूंछ होती है बहुत लंबी होती है और एक बार तो उसकी रोशनी बहुत चमकती है, लिट ब्रिलियंटली बाय द सनलाइट, सनलाइट के द्वारा बहुत तेज चमकता है एक बार तो, फिर वो डार्कनेस में बदल जाता है और कई सालों तक और कई सेंचुरीज तक फिर से दिखाई नहीं देता। What chance did he stand with his 8-inch Divya? Didn't professional astronomers have gigantic telescope? कि what chance did he stand? कि वो सोच रहे हैं कि जो उनका जो टेलीस्कोप है वो कितना लॉन्ग है, 8 इंचेस, और जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं ना उनका जाइगेंटिक, जाइगेंटिक क्या होता है, वेरी बिग, उनके जो टेलीस्कोप्स होते हैं वो तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर दत्तादा का टेलीस्कोप है वो कितना बड़ा है, 8 इंचेस।
दत्तादा वॉज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स, मतलब जो उनकी विचारधारा है वो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। ही न्यू दैट professional with their pre-assigned programs would be looking at faint stars and nebulous galaxies. nebulous galaxies का मीनिंग आपको यहाँ नीचे दिया हुआ है बेटे। nebulous क्या होता है? हैजी, जो बिल्कुल डल सी होती है। गैलेक्सी आप पता ही है। they might miss such an insignificant things as a comet which they were not expecting to see anyway. Indeed, amateurs had often discovered new comets what the professional had missed. यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो प्रोफेशनल एमेटर्स होते हैं वो इन कॉमेट को खोजने में सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि वो जिसकी जो हॉबी होती है वो उसको बहुत मन से करता है। और हम कोई भी काम बड़े मन से, अच्छे मन से करते हैं तो वो उसमें हमें सक्सेस जरूर मिलती है। ऐसे ही जो दत्तादा हैं उनकी ये बहुत हॉबी है, ये अपने पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे, वो अपनी हॉबी को फुलफिल कर रहे हैं। और उनका ये एम्बिशन है, सीक्रेट एम्बिशन, टू डिस्कवर आर न्यू कॉमेट वन डे। सो उनको लगता है कि जो कॉमेट्स प्रोफेशनल अमेटर्स मिस कर देते हैं वो हम जैसे अमेटर साइंटिस्ट डिस्कवर करेंगे। एंड इट लुक्ड टू दत्तादा दैट टुनाइट वाज गोइंग टू बी बिग नाइट। और आज दत्तादा को ऐसा लग रहा है कि आज की रात जो है वो बहुत अच्छी रात है, बड़ी रात है। फॉर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार्स दत्तादा हैड डिटेक्टेड ए फेंट स्ट्रेंजर, कि अब उनको एक आज अलग से नया, फेंट क्या होता है? जो अभी पूर्ण रूप से नहीं दिखाई दे रहा। ही री एग्जामिन द चार्ट्स विद हिम, फिर उनसे चार्ट को री एग्जामिन करते हैं। चेक्ड हिज दिव्या फॉर हर स्मजेस ऑन द ऑप्टिक्स। स्मजेस क्या होते हैं? स्पॉट्स और मार्क्स। ऑप्टिक्स मतलब जो दिव्या की आईज हैं, जो टेलीस्कोप हैं, उसमें फिर से वो उसको प्रॉपर चेक करते हैं। उनको आज एक फेंट स्टार दिखा है, उसको अपने चार्ट के थ्रू चेक करते हैं कि ये तो मैंने आज नया ही देखा है। Forethought, absent minded about his daily course, he was meticulous in his observing. मतलब डेली के जो वर्क हैं उनमें वो एब्सेंट माइंड हो सकते हैं, केयरलेसनेस हो सकते हैं, लेकिन कॉमेट को फाइंड आउट करने में, स्टार्स को ऑब्जर्व करने में वो बहुत ही रेस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। Yes, there can be no mistake. No, after rechecking the stars, he made a conclusion that there is no mistake in finding such stars. What he was looking at had not been there earlier, and it did look like a new comet. कि ये तो नए कॉमेट की तरह से दिख रहा है। 2 days later, आनंद बाजार पत्रिका came out with the news. 2 दिन के बाद एक आनंद बाजार पत्रिका के अंदर न्यूज़ आती है, कैलकाटा मैन डिस्कवर्स न्यू कॉमेट, कि जो कलकत्ता का आदमी है, एक कौन है वो कलकत्ता के रहने वाले, कॉमेट, दत्ता को ढूंढने वाले दत्ता, मनोज दत्तादा, उन्होंने एक न्यू कॉमेट को खोजा है। फ्रॉम आवर स्पेशल कोरेस्पोंडेंट श्री मनोज दत्ता, आर रेजिडेंट ऑन द नॉर्थर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ कैलकाटा, has claimed to have discovered a new comet. There was a news in Anand Bazar Patrika that a person of Calcutta, Manoj Datta, had discovered a new comet. He has seen the comet on the last 2 nights and informed the Indian Institute of Astrophysics. ये एक इंस्टीट्यूट है, जब कोई भी कॉमेट को फाइंड आउट किया जाता है तो उसको एक ऑफिशियल उसको बताना पड़ता है, वो भी री एग्जामिन करते हैं IIA. At Bangalore of its whereabouts, the IIA runs a 90-inch telescope. जो IIA इंस्टीट्यूट है वहाँ पर कितने इंच लंबा टेलीस्कोप है? 90 इंच। और जबकि मनोज दत्ता के पास कितना है? 8 इंच। द बिगेस्ट इन एशिया, जो पूरी एशिया में एक बड़ा है सबसे, एट के वैल्यू। इफ़ इट कन्फर्म्स, अगर इंस्टीट्यूट के अंदर उस टेलीस्कोप के द्वारा कन्फर्म हो जाता है, if it confirms Datta finding, it will be the high point in his lifelong career as amateur astronomer. अगर ये बात सच हो जाती है तो उनकी लाइफ के अंदर ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा। Datta, as he is affectionately called by his friends and admirers, estimates that the comet would be clearly visible to the naked eyes in the next few months. कि Datta, as he और उनके फ्रेंड्स, एडमायरर्स एस्टिमेट दैट कि कॉमेट विल बी, जो कुछ मंथ्स के अंदर जो ये कॉमेट है ये बिना टेलीस्कोप के भी हम इनको देख सकते हैं। ही गिव्स ऑल क्रेडिट फॉर हिज डिस्कवरी टू हिज 8-inch टेलीस्कोप विच ही कॉल्स दिव्या। जो उन्होंने ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की है पूरी वर्ल्ड के अंदर, वो इस डिस्कवरी का जो
क्रेडिट है वो किसको दे रहे हैं, अपने टेलीस्कोप को जो 8 इंच लॉन्ग है और जिसका नाम उन्होंने क्या रख रखा है, दिव्या। देयर आफ्टर इट लुक्ड just 1 week of comet Datta to be recognized and so named, for the IIA confirmed the findings and communicated its worldwide. According to the accepted practice, the new comet was named after its discoverer. अब जो IIA इंस्टीट्यूट है उसके अंदर एक लॉन्ग टेलीस्कोप के द्वारा उसको कंफर्म किया जाता है कि कोमेट दत्ता जो खोजा गया है क्या वो बिल्कुल सही है या गलत है। तो अगर ये न्यूज़ उन्होंने कंफर्म कर दी कि बिल्कुल सही है तो ये न्यूज़ वर्ल्ड वाइड फैल जाती है, पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल जाती है और उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है न्यू कॉमेट। और क्या कहा जाता है कि जो न्यू कॉमेट है उसका नेम जिसने ढूंढा है, जो उसने सर्च किया है उसके नाम के साथ जोड़ा जाएगा। दिस ब्रोट इन अनवेलकम पब्लिसिटी टू द इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, जो रिजर्व नेचर के होते हैं, जो अपने आप में लिमिट रहना चाहते हैं, जो सोशल नहीं होते ज़्यादा, जो ऐसे ही मनोज दत्ता हैं जो इंट्रोवर्ट नेचर के हैं, उनको इतनी पब्लिसिटी अच्छी नहीं लगती। उनका एम तो है न्यू कॉमेट को खोजना, लेकिन न्यू कॉमेट को खोजने के बाद जो वो फेमस हो जाएंगे वो उनको पसंद नहीं है। तो अब देयर वर न्यूमरस रिसेप्शंस एंड फंक्शंस टू अटेंड। अब वो इतने फेमस हो गए, फेमस पर्सनैलिटी हो गए, सेलिब्रिटी हो गए कि अब उनको काफ़ी सारे फंक्शंस को अटेंड करना पड़ा। रिटर्निंग फ्रॉम वन सच सेरेमनी, ऐसे ही एक सेरेमनी को अटेंड करने के बाद जब वो आते हैं तो मटर टू हिमसेल्फ इन डिस्गस्ट, और अपने आप से क्या कंप्लेन कर रहे हैं, आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट, कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये कॉमेट खोजना ही चाहिए था। क्यों नहीं खोजना चाहिए था, क्योंकि ये खोजने के बाद उनको काफ़ी सारे फंक्शंस को अटेंड करना पड़ा। टू हिज सरप्राइज इंद्रानी देवी एग्रीड, इंद्रानी देवी भी उनके इस डिज़ायर से एग्री है, लेकिन उनकी जो व्यूज़ हैं दोनों के चेंज हैं। आई विश द सेम दो नॉट फॉर द सेम रीज़न, बट उनके जो रीज़न है वो सेम नहीं है। May I ask why you wish I had not discovered this comet? Dattada asked. Now Dattada was asking from his wife that why you don't know how you are not happy finding my comet. And his wife replied, comets bring ill luck. जो comets हैं वो bad luck को लाते हैं। And I wish a good man like you were not associated with the discovery of one. और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसे जो अच्छे इंसान हैं वो इस कॉमेट की डिस्कवरी के साथ ना जुड़ें। इंद्रानी देवी said with concern. At this point इंद्रानी देवी was concerning about her husband. Dattada laughed. When Dattada heard from his wife about this, then he started to laugh. I see that even an MA degree has not cured you of your superstitions. कि तुम्हारी MA की डिग्री ने भी तुम्हारे अंधविश्वास को ख़त्म नहीं किया। There is no correlation whatever with the arrival of a comet and the calamities of the earth. कि इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है कि कमेट के आने में और अर्थ पर आपदियों, मतलब जो कॉमेट है वो तो आएगा ही, नेचुरल है, और उसके कारण जो अर्थ पर प्रॉब्लम होगी, कैलेमिटी क्या होती है, प्रॉब्लम होना, डेंजरस सिचुएशन क्रिएट होना, उन दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है कि कॉमेट के आने से अर्थ के ऊपर कोई भी विपदा या आपदा आएगी। ऑन द कंट्रेरी कॉमेट्स हैव बीन साइंटिफिकली स्टडीड एंड देयर कंपोजिशन इज वेल अंडरस्टूड। नाउ जो है अब कॉमेट्स को साइंटिफिकली स्टडी किया गया है एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा और उनके बारे में समझ लिया गया है। देयर इज नथिंग हार्मफुल अबाउट देम, इनके आने से कुछ भी नहीं होता। वेल यू won't see this comet of mine pass harmlessly by causing no anxiety to anybody. और क्या कहता है अपनी वाइफ को कि देखना ये कॉमेट भी आएगा और बिना कोई हानि पहुंचाए यहाँ से क्रॉस करके चला जाएगा। In this last comment, however, Dattada was not going. Okay, students, that's all for today. Now you have to read these pages very well.